Student, a very pleasant morning to you all. I am Vinita ma'am, your science teacher of MLP school, Rajpura. As you know, student, from 2nd July, our Honorable Director Sir and Chairman Sir has decided to provide you a better quality education through online classes for various types of competitive exams like NTSC, RMS, NDA, Navodaya, Sainik School, Army School, and so many more are there. Students, their main motive is to provide a best quality education for the developing abilities of their student, for their personality development, for their growth, and for their bright future through a large number of variety of courses provided by upcoming videos through our YouTube channel. Well, student, whatever I am going to teach you in the upcoming videos, you have to learn from that. You can't miss them. You don't have to miss these videos, because if you want to enhance your knowledge or want to upgrade your knowledge, you will definitely do this. I hope you will very carefully attend these classes or listen them and enjoy these videos, and you have to write all these notes in your fair notebook. Through these upcoming videos, if you are preparing yourself from this video, I knew that you will definitely, if you are going to face any kind of exams, you will definitely crack it and score high. So without any kind of delay, let's start, student, our classes of science for the preparation of competitive exams. Okay, student? Okay, student, now we will do the preparation for competitive exams. Here I am presenting you few questions through which you can prepare yourself for facing the competitive exam. So let's start without delaying. Students, have a look. See here, I have provided you a MCQ based question, because you know in any exams, whenever we are going to face it, we see a lots and lots of questions that are only, you can say that, MCQs based. So we will start from first question. The iron is galvanized by coating with. Firstly, I will explain to you that what is the galvanization. Galvanization एक ऐसा process होता है स्टूडेंट, जिसमें कि आप किसी भी मेटल के ऊपर अनदर मेटल की कोटिंग करते हैं, जिससे वो मेटल, उसमें जंग नहीं लगता, या फिर वो किसी भी अदर रीज़न से डिस्ट्रॉय नहीं होता एंड लॉन्गर स्टे करता है. तो आयरन के ऊपर हम किसकी, जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, बिकॉज आयरन जो है वो जल्दी मॉइस्चर की वजह से उसमें रस्ट लग जाता है. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर डैश इन नेचर. ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्टूडेंट एसिडिक होते हैं नेचर में. एसिडिक हम ये कैसे टेस्ट करते हैं, वी डू इट फ्रॉम द टेस्ट पेपर. टेस्ट पेपर पीएच टेस्ट पेपर होते हैं, उनके थ्रू हम इनको टेस्ट कर सकते हैं. स्टूडेंट, नाउ ऑक्साइड्स क्या होते हैं. ऑक्साइड स्टूडेंट जो होते हैं, किसी भी मेटल के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है, वेदर वो 1 एटम को कंटेन करे या मोर देन 1 एटम को कंटेन करे, एंड प्लस में नॉन मेटल उसके साथ होता है, तो वो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल कहलाता है. जैसे एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रिक, ये सारे जितने भी हैं ये ऑक्साइड्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर डैश इन नेचर. इसका आंसर है आपका, द आंसर इज एसिडिक. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ लिक्विड मेटल. एक ऐसा लिक्विड मेटल जिस, मतलब एक ऐसे मेटल के बारे में बताना है जो लिक्विड होता है. देखिए, ब्रोमाइन, हाइड्रोजन, मर्करी, कॉपर, इनमें से जो हमारा मर्करी है, द मर्करी इज ओनली लिक्विड मेटल. ओके स्टूडेंट, जो मर्करी है ये रूम टेम्परेचर पे स्टूडेंट लिक्विड फॉर्म में होता है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम ऑफ नॉन मेटल विच हैज़ लस्टर। लस्टर इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, लस्टर का मतलब होता है शाइन। शाइन, जो मेटल चमकते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, दे ऑल हैव देयर shine, so these metals we can say that these metals are the lustrous metal। तो इसमें जितने भी एग्जांपल्स ये नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, नॉन मेटल्स में डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसके पास लस्टर होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोब दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो माइक्रोब्स होते हैं जो कि ओनली होस्ट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। फर्स्टली स्टूडेंट, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स बोलते हैं। इन द वर्ड दैट इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट? जो ये माइक्रोब्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सारे जितने भी वायरस होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, जिस भी एनिमल, जिस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। होस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी अनदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करना, उससे शेल्टर लेना, तो वो उनका होस्ट हो गया। तो माइक्रोब एक ऐसा माइक्रोब जो किसी होस्ट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहता है एंड वहीं पर रिप्रोड्यूस होता है, तो वो ओनली क्या है? वायरस। आपने एट प्रेजेंट आप सुन रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम द गूगल और फ्रॉम द यूट्यूब एंड सो मेनी मोर मीडियाज आर देयर। तो अब कोरोना क्या है? वो एक ऐसा वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाता है एंड रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। तो मल्टीप्लाई इन द सेंस रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ये डायसेंट्री एंड मलेरिया, मलेरिया एक मलेरिया किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो की बाइट की वजह से। अब सपोज दैट किसी को अगर मॉस्किटो ने काट लिया तो उसको किस तरह की डिसीज हो जाती है? मलेरिया। वो भी स्टूडेंट देखिए, मलेरिया किस मॉस्किटो को काटने से होता है? स्टूडेंट, मलेरिया जो है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने की वजह से हो जाता है। एंड डायसेंट्री, लूज मोशंस वगैरह जो होते हैं, ये आपके जो दोनों डिसीज़ हैं ये किस वजह से होती हैं? प्रोटोजोआ नाम का जो माइक्रोब्स है, इफ़ आपकी बॉडी में चला जाता है तो मॉस्किटो भी प्रोटोजोआ की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स। आपने देखा होगा जो ब्रेड आप खाते हैं उसमें वो किस तरीके से फ्लफ़ी होती है, फूली हुई होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके लिए हम ईस्ट का यूज़ करते हैं। उस ईस्ट को उसके अंदर जो फ्लोर होता है उस के अंदर जब हम मैदा फ्लोर के अंदर ईस्ट को डालते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं, देन वो फ्लफ़ी हो जाती है, फूल जाती है। तो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ ईस्ट। एडवर्ड जेनर इन 1798 डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर। एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1798 में जो वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी वो किसके लिए थी स्टूडेंट? स्मॉल पॉक्स के लिए थी। स्मॉल पॉक्स आपने देखा होगा छोटे छोटे से फेस पे दाने वगैरह हो जाते हैं, दैट इज़ द स्मॉल पॉक्स। रेबिस जो है वो डॉग की बाइट की वजह से होती है। एंड पोलियो ना किसी की भी बॉडी में पैर वगैरह में, लेग्स जो हैंड्स वगैरह में हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। एंड चिकन पॉक्स भी सेम स्मॉल पॉक्स से ही सिमिलर होता है, बट थोड़ी सी उसके अंदर जो आप कह सकते हो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड बाय। जो हेपेटाइटिस बी है ये भी एक डिसीज़ है जो कि एक वायरस की वजह से होती है। हेपेटाइटिस बी, ये जितने भी मैंने माइक्रोब्स बताए हैं इन सब की वजह से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस की वजह से हो जाती है, कोई एक वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। देन डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय। अभी मैंने आपको अ फ्यू मिनट्स अगो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द मलेरिया, द सेम थिंग लाइक दैट इज डेंगू फीवर। ये हमें फीमेल एडिस मॉस्किटो की बाइट की वजह से हो जाती है। हमें किसी ने फीमेल मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तो हमें डेंगू फीवर हो जाता है। ओके स्टूडेंट, थ्रू दिस आई एम एंडिंग माई क्लास। हैव अ गुड डे।